السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کیتھلسن کی موت کے ساتھ ہمارا شباب بھی گزر گیا۔ سکندر اور میں ارسطو کے درسگاہ میں کیتھلسن کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے ہمدم ذیشان علی سکندر اعظم واقعی اس بات کا عملی نمونہ تھا کہ صرف آگے دیکھو، راستے میں آنے والی ہر مزاحمت کو ہٹاتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ چنانچہ اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان کا رخ کیا جائے۔ موسم بہار شروع ہوتے ہی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ سکندر کا عظیم اور پرشکوہ لشکر ہندوستان کی سمت روانہ ہو چکا تھا۔ تا حد نگاہ تلواریں اور نیزے چمک رہے تھے، رنگ برنگے پرچم، چاندی اور سونے کے پتر چڑھی ہوئی ڈھالیں، ہزاروں کی تعداد میں اناج اور بار برادری کا سامان لیے ہوئے اونٹ، مویشی اور پھر سواروں کے دستے، ان کے پیچھے بڑی بڑی بلند منجکیں، اور ان سب نے مل کر سکندر کے لشکر کو اتنا پرشکوہ بنا دیا تھا کہ دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہوتی۔ میں لشکر کا اگلا سرا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن قدموں سے لرزتی ہوئی دھمک اور آسمان تک چھائے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ کر ہی یہ یقین ہوتا تھا کہ کسی میں سکندر کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ہوگی۔ سکندر اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کے گرد شاہی محافظوں کا ایک خاص دستہ جو شاندار گھوڑوں پر سوار اور وہ شاہانہ انداز میں تنہا بیٹھا تھا۔ لشکر ہر روز تمام دن سفر کرتا اور سایہ ڈھلتے ہی قیام کرتا۔ خیمے نصف ہو جاتے، کھانے پکانے کے لیے جگہ جگہ آگ روشن ہو جاتی اور ہر سمت گہما گہمی شروع ہو جاتی۔ سکندر غسل کر کے جسم پر مالش کروانا اور پھر کمانڈروں اور ان کی بیویوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا، اور سکندر مجھ سے اتنی والہانہ محبت کرنے لگا تھا کہ بہت سے کماندار مجھ سے حسد کرنے لگے تھے۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کروتی کی اس بات پر میں نے عجیب سے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا اور بولا، ہر چند کے میں اس دور میں نہیں تھا کروتی، لیکن تم یقین کرو اس وقت میں بھی سکندر سے بے پناہ رقابت محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دوست، میرے محبوب ذیشان علی، اس وقت میں اسناکیہ کے روپ میں سکندر کی بیوی کی حیثیت سے تھی۔ ظاہر ہے کہ میں اسناکیہ کی حیثیت سے اپنا کردار نبھا رہی تھی، اور میں اگر تاریخ بدل سکتی تو شاید سکندر کی جگہ تمہیں دیکھنا پسند کرتی۔ کروتی کی یہ الفاظ سن کر ذیشان علی مسرور ہو گیا، اور تھوڑی دیر تک خاموشی کے بعد کروتی نے پھر کہنا شروع کیا۔ اس دن کی انتھک اور دشوار گزار سفر کے بعد ہم ایک سرسبز وادی میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر سکندر نے ٹیکسلا کے راجہ اور دوسرے حکمرانوں کے پاس قاصد بھیجے اور ان کو پیغام دیا کہ وہ اطاعت قبول کر لیں اور آمد پر اس سے ملاقات کریں۔ 20 دن کے بعد ہم نے کوچ کیا اور برف پوش پہاڑوں کی یک فضاؤں اور دشوار گزار بلندیوں سے گزرتے ہوئے ہم ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ گھنے جنگلوں میں ہم نے پہلی بار بے شمار بندروں کو درختوں پر اچھلتے کودتے دیکھا، اور ان درختوں پر سبز رنگ کے سانپ اس کثرت سے تھے کہ ان پر رسیوں کا گمان ہوتا۔ جنگل سے گزر کر کابل کے قریب واقع ایک شہر میں پہنچ گئے۔ سکندر کی شہرت اور ہیبت اس سے آگے سفر کر رہی تھی۔ گرد و پیش کے تمام لوگ اسی کی اطاعت قبول کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا لباس، واضح قطع اور زبان، ہر چیز ہمارے لیے نئی تھی۔ ہمیں قیام کے دوران زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ ٹیکسلا کا راجہ سکندر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اپنے خیمہ شاہی کے سامنے سونے کی کرسی پر بیٹھ کر سکندر نے راجہ کو بازیابی بخشی، اور اس کے مشہور کمانڈر اس موقع پر اس کے گرد کھڑے تھے، اور میں زور و جواہر سے لدی سکندر کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ راجہ سے پہلے اس کے درباری سردار زمرد اور موتیوں سے مزین پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ساتھ بے شمار قیمتی تحائف لے کر آئے۔ اس کے بعد دراز کا دراجہ نمودار ہوا، اور اس کے کانوں میں ہیروں کے بالے تھے جن میں جڑے ہوئے ہیروں سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سونے اور جواہرات کے کنگن تھے۔ خوش آمدید راجہ صاحب، سکندر نے کہا۔ زیبس کے بیٹے سکندر، میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تم سے قبل مختلف لوگوں کے ہندوستان آنے کے بعد صرف روایات میں نے سنی تھی، لیکن تم کو میں خود خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوں۔ سکندر اس تخاطب پر بہت خوش ہوا، اور دونوں نے اپنے اپنے رواج کے مطابق
कुर्बानी के खून में तलवार और भाले डुबोकर अपनी दोस्ती का अहद किया और फिर तहाइफ का तबादला हुआ। राजा ने सिकंदर की अताअत कबूल कर ली और राजा ने बताया कि सिकंदर को ज़्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान बेशुमार राजाओं में बटा हुआ है और जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। 30 दिन के क़याम के बाद हम फिर रवाना हो गए। सिकंदर ने एमलश को राजा की रहनुमाई में पहले ही दरियाए सिंध की जानब रवाना कर दिया था, ताकि वह दरिया पार करने के लिए जहाज़ों और कश्तियों का बेड़ा और पुल तैयार कर लें। और मुझे एमलश का साथ छूट जाने का दुख हुआ, क्योंकि वह अपनी खुश मजाजी की बिना पर मुझे बहुत पसंद था और तमाम कमांडरों में से सिर्फ वो था जो मुझे अजीज़ रखता था। हम अब एक ऐसे पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे जहां गाड़ियों और पालकी के लिए बार बार रास्ता बनाना पड़ता, और उस सुस्त रफ्तारी से आजिज़ आकर सिकंदर ने फ़ौज के 2 हिस्से किए और हमें वहीं छोड़कर फ़ौज के एक हिस्से को लेकर आगे बढ़ गया। वहीं एक दिन मुझे अचानक मतली होकर एक क्या हुई। मैं समझी कि बदहज़मी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मेरी साथी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो असनाकिया, तुम हमल से हो। और उस वक़्त ज़ीशान अली असनाकिया के सिए से मेरी खुशी काबिल दी थी। दुनिया के अजीम फातेह ने मुझे यह एजाज़ बख्शा था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूंगी। कुरोती ने खोए खोए लहजे में कहा, और ज़ीशान अली सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है, एक ऐसी औरत जिसकी उम्र का कोई तयन नहीं किया जा सकता, जो बज़ाहिर इंसानी रूप में उसके साथी है, लेकिन उसकी असल हसीयत क्या है। और वह दुनिया के हर दौर में अच्छे बुरे लोगों के साथ रही और अब यूनानी दौर के सिकंदर आज़म की बीवी है। वाह, जिंदा सदियाँ वाकई एक ऐसी ही अनोखी तहरीर बनकर लोगों के सामने होगी, जिसका किरदार अपने साथ रहने वाली एक औरत के बारे में लिखेगा। एक ऐसी अजीब दास्तान जिसमें हर दौर की औरत की दास्तान, और वह उस औरत को कुरोती से सुनेगा, बल्कि बाद लम्हा तो खुद उसके साथ उस दौर में भी महसूस करेगा। बहरहाल कुरोती ने फिर कहना शुरू किया, मैंने अपने साथी औरत से वादा ले लिया कि मेरे हमल को राज रखेगी। दरअसल मैं ये खुशखबरी सिकंदर को खुद सुनाना चाहती थी, और उससे हमसे जुदा हुए 2 माह गुजर चुके थे, क्योंकि हम बाकी मांदा लश्कर के हमरा दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे जो निस्बतन ज़्यादा तवील था। उस दौरान सिकंदर के खतूत मेरे पास आते रहे। शुरू में उसके खतूत मोहब्बत और फ़राक़ के ज़िक्र से भरे होते, और साथ ही उनमें तमाम फ़ौजी कार्रवाइयों की तफसील भी होती। उसने एक फतेह के बाद अपने साथी को वहीं छोड़ा और ख़ुद आगे बढ़ गया। दूसरे ख़त में उसने गौर में कबाइलों के मुकाबले का जिक्र किया था, और तीसरा ख़त नीसा से आया, जिसमें उसने लिखा कि उस शहर के लोग अकीदा रखते हैं कि नीसा की बुनियाद यूनानी देवता ने रखी थी। शहर की आबादी एक पहाड़ के दामन में वाक़या है। पहाड़ की ढलवानों पर इश्क पेचा के पौधे बड़ी कसरत से पाए जाते हैं, और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं यहाँ कुछ अरसे क़याम करूँगा। तुम जल्द अज जल्द यहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देवनी सोस की इबादत के त्यौहार में जो जश्न तर्ब होने वाला है, वो मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाऊँ। मेरे साथ मौजूद औरत ने जब ये सुना कि ख़त में देवनी सोस के जश्न का जिक्र है, तो कहने लगी कि मेरी मालूमात के मुताबिक देवनी सूस के त्यौहार में ज़बरदस्त दावत होती है, और जश्न तरब में शराब पानी की तरह बहाई जाती है, जिसके बाद किसी में होश बाकी नहीं रहता, और मर्द औरतें बिला किसी इम्तियाज़ के सरे आम दादे ऐश देते हैं। मैंने उसकी बात मजाक में टाल दी, क्योंकि सिकंदर से इस बात की तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो ऐसे किसी बेहुदा जश्न में शिरकत कर सकता है। 7 दिन के बाद सूरज ढले हम शहर नीसा पहुँचे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। पहाड़ की ढलवानों पर हर सिमत मशअलें रोशन थी। दूर से ही ज़बरदस्त शोर-ओ-गुल, मौसीकी और तिबल की आवाज़ें सुनाई दी, और हमने वादी ही में क़याम किया और खैमे निस्ब कर लिए गए। मुझे हैरत भी थी और अफसोस भी कि सिकंदर ना तो खुद मेरे इस्तकबाल के लिए आया और ना किसी और को भेजा था। पहाड़ी की चोटी से शोर-ओ-गुल की आवाज़ें तेज़ होती गईं। बस्ती के लोग बेतहाशा उसी सिमत भागे चले जा रहे थे। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। जश्न तरब शुरू हो गया, जल्दी चलो, जश्न तरब शुरू हो गया। वो नाचते गाते पहाड़ी की सिमत भागे जा रहे थे। मेरी साथी औरत मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि जश्न शुरू हो गया। सब हमारा इंतज़ार करके वहीं चले गए। मेरा ख्याल है कि हम भी वहीं चलें। मेरा शोर ऐसा जश्न में कभी शरीक नहीं होता, इसलिए मुझे आज़ादी के साथ तफरीह का मौका मिल जाएगा।
मुझे सिकंदर से मिलने की बेताबी थी और दिल में ये जलन थी कि जाने वो किसके साथ दादे ऐश दे रहा होगा। इसलिए हम उसी हालत में वहाँ से रवाना हुए। दूसरे कमांडरों की औरतें भी हमारे साथ शामिल होंगी। हमने सब ने चेहरे पर नकाबें डाल ली। सबा मेरे साथ थी और पहाड़ी पर जाने वाले हजूम के रेले ने हमको जल्दी ऊपर पहुंचा दिया। चोटी पर मंदिर मौजूद था। कुर्बान गाह पर फैले हुए ताज़ा खून से हमने अंदाजा कर लिया कि जश्न शुरू हो चुका है। हर सिमत दरख्तों के झुंड, झाड़ियों और इश्क पीचा की बेलों से बने कुंज थे। हम जैसे ही आगे बढ़े, एक सिमत से बहुत से लोग दफ और जाछें बजाते हुए निकले और उनके चेहरों पर बेहानक नकाबें चढ़ी हुई थी, लेकिन जिस्म लिबास से आरी था। उनके साथ ही शराब का एक तेज़ भपका आया और मैंने मुड़कर देखा। मेरी साथी औरत गायब हो चुकी थी। मेरे लिए इस जहन्नमी महफिल तरफ को मज़ीद देखना मुमकिन न था, इसलिए सबा को फ़ौरन साथ लेकर वापस रवाना हो गई। हम भागते हुए शहर में दाखिल हुए। मकदूनी मुहावज़ों ने हमें शाही खैमा गाह तक पहुंचा दिया, लेकिन सिकंदर खैमे में मौजूद न था। मेरे भाई ने नदामत से झुकी हुई नज़रों से बताया कि वह जश्न में शरीक होने गया है। सबा ने मुझे गुस्ल दिया और उसके बाद मैं लेट गई। पहाड़ी से आने वाले शोरगुल और कैकों की आवाज़ें जहन पर हथौड़े चला रही थी। रात के पिछले पैर सिकंदर वापस आया तो मुहाफ़िज़ उसे संभाले हुए थे। वो नशे में इतना धुत था कि उसे किसी बात का होश ना था। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। असनाकिया, ओ मेरी असनाकिया, उसने लड़खड़ाती ज़ुबान से कहा और मेरे बाजों में गिरकर सो गया। जश्न तरब का सिलसिला 3 दिन जारी रहा। सिकंदर उसके साथी तमाम दिन सोते और तमाम रात रंग रलियाँ मनाते। मैंने दानिस्ता ये दिन अपने ख़ैमे में गुजारे। सिकंदर का ये रवैया मुझे बेहद शाक गुजरा और मैं बेहद उदास थी। उसी दिन मेरे बाबा भी नीसा पहुंच गए और वहां से आने के बाद मेरी उनसे अब तक मुलाकात न हो सकी थी, इसलिए उनकी आमद से बड़ी खुशी हुई। मैंने उनसे शिकवा किया कि सिकंदर को अहले नीसा के इस बेहुदा जश्न में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि फजूल अंदेशे ना करूं। बादशाहों के लिए ऐसे मौके पर शिरकत करना ज़रूरी होती है और मुझे एक बार फिर औलाश की याद सताने लगी। जश्न के खात्मे के बाद सिकंदर ने मज़ीद 3 दिन नीसा में क़याम किया ताकि उसके साथी आराम करके ताज़ा दम हो जाए। रवानगी से एक दिन कबल रात को मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी कि पर्दा उठा और सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। मैंने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया तो बड़ी मोहब्बत से मेरे पास बैठकर बोला, असनाकिया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुमने अपने हामला होने का जिक्र किया तो मैं नशे में था, लेकिन तुमने ये खुशखबरी मुझे ख़त में क्यों ना तहरीर की। मैं आपको खुद ये खबरें मुसर्रत सुनाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि जब यहाँ पहुँची तो आप होशो खुर से दूर पहुँचे हुए थे। मुझे अफसोस असनाकिया, सिकंदर ने माजरत की, लेकिन थकी मांदी फ़ौज को कभी कभी अपने जज्बात की तस्कीन की भी ज़रूरत होती है। मैंने अपने लश्करों की खुशनुदी के लिए जश्न में शिरकत की थी। सिकंदर का अंदाज माजरत अमीज़ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी सर्द महरी जारी रखी और दूसरे दिन हमने नीसा से कूच किया। सिकंदर ने बच्चे की पैदाइश का ऐलान आम कर दिया और उस रात भी वो सिकंदर के पास ना गई। तीसरी शब खाने के बाद सिकंदर अपने साथियों के साथ पांसा खेलने बैठ गया। बशीमर ने कहा, हम जिस तरह पेश कदमी करते हैं, लोग पहले से बस्तियां खाली करके छुप जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी तरह हमारी आमद की खबर पहले लग जाती है। सिकंदर एक लम्हा सोचता रहा और फिर उसने कहा, हमें एक बार भी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। मेरा अर्ज़, तुम मशरक़ की सिमत से आगे बढ़ो, बतलमूस मगरब का रास्ता अख्तियार करे। एमलश और मैं बाकी दोनों सिमतों से बढ़ते रहेंगे और इसी तरह हम हर सिमत से उन्हें घेरे में ले लेंगे। सब ने उस ख्याल की तायद की। वो सब मनसूबा बंदी में लग गए तो मेरी साथी औरत, जो खुद भी एक ईमानदार की बीवी थी, मुझे अलहदा ले गई। तुमको क्या हो गया है असनाकिया? नीसा पहुंचने के बाद तुमने जो सरदर्द ये सिकंदर के साथ इख्तियार किया है और उसका जिक्र अब आम हो गया है, यहाँ तक कि लोगों को भी ये मालूम है कि तुम एक रात भी उसके पास नहीं गई। तुमको मालूम नहीं कि मैं हामला हूँ, मैंने बेरुखी के साथ जवाब दिया। वो हंस पड़ी, फिर बोली, मालूम है, इसलिए तो सिकंदर को खुश रखना और भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि उसके वक़ार को ठेस पहुँचे और बात काबू से बाहर हो जाए। उसकी सरजंश ने मुझे खुद भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं वाकई ज़्यादती कर रही थी। जब सब लोग चले गए तो मैंने बड़े प्यार से सिकंदर को मुखातब किया, आपने आज रात बहुत कम खाना खाया।
सिकंदर ने चौंक कर मुझे देखा और उसकी आंखों में तमन्नाएं भरी हुई थीं। हसीन असनाकिया, बचपन में मेरे उस्ताद ने नसीहत की थी कि रात को खाना कम खाया करो। तब से मैंने भूख पर काबू पाना सीख लिया। लेकिन अफसोस कि उस्ताद ने ये नहीं सिखाया कि असनाकिया की मोहब्बत की भूख पर कैसे काबू पाया जाए। मैं खुद भी मोहब्बत की भूखी थी, इसलिए जब सिकंदर ने बाजू फैलाए तो मैं बेसाख्ता उनमें समा गई। हम कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए। 3 दिन के बाद जब सिकंदर रवाना होने की तैयारियां कर रहा था और उसने अचानक तमाम खिदमतगारों को बाहर भेज दिया और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, शोहर के जिस्म पर हथियार सजाना बीवी का फ़र्ज है और इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि ये खिदमत मुझे नसीब हो। मैंने जवाब दिया, लेकिन आपका जुदाई का तस्वर सुहाने रूह बना हुआ है। असनाकिया, आज तुम गैर मामूली परेशान नज़र आती हो। सिकंदर ने कहा, फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें बराबर खत लिखता रहूँगा। और उसने मुझे बड़ी वालहाना मोहब्बत से अलविदाई बोसा दिया। हिंदुस्तान में हमारी पेशकदमी जारी रही। रवानगी के 2 हफ्ते बाद सिकंदर का ख़त मसूल हुआ और वह ईरान में पेशकदमी कर रहा था। वहाँ की रानी शेराना शहर का दिफा कर रही थी और उसने दूसरे ख़त में ईरान की फतह की खुशखबरी दी। रानी ने सुलह करके अतात कबूल कर ली। कई दिनों की जुदाई के बाद फिर सिकंदर के पास पहुँच गई। हैरान में हमारा पुरजोश खैर मकदम किया। मेरी पालकी के पास पहुंचते ही सिकंदर एक खैमे का पर्दा हटाकर भागता हुआ निकला और लोगों की परवाह किए बगैर मुझे पालकी से निकालकर अपने बाजुओं में भर लिया। कितने दिन हो गए मेरी असनाकिया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। 6 माह, मैंने शर्माते हुए जवाब दिया। खुदा की बरकतों से यकीन है कि बेटा होगा। ज़ेवस की दुआओं से वो सिकंदर का नाम रोशन करेगा। सिकंदर ने बड़े फ़ख्र से कहा, लेकिन जाने मन अफसोस ये है कि इस हालत में अब तुम मेरे साथ सफ़र न कर सकोगी। फिर हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे और उसके बाद सिकंदर चला गया और मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो बाहर शोर हो रहा था। सबा ने बताया कि ईरान की रानी सिकंदर के लिए तोहफ़े लेकर आई है। रानी सामने रंग की एक खूबसूरत औरत थी। सिकंदर ने उसका इस्तकबाल बड़े तपाक से किया। बाद कनीज़ों ने मेरे कान भरे कि सिकंदर इस दिल फरेब औरत पर फरीफ्ता हो गया और एक रात उसके साथ गुजार भी चुका है। मैं औरत थी, इसलिए हसद की चिंगारी सीने में सुलग उठी। लेकिन फिर सिकंदर ने दूसरे ही दिन फैसला कर लिया कि वह शमीर की मदद के लिए जाएगा, जिसके आसपास जंगजू कबाइल भी पनाह गुज़ीन हो गए थे। किला की फसीलों पर चढ़ना दुश्वार हो गया क्योंकि वो इतनी शदीद तीर अंदाजी करते थे कि सिकंदर के सिपाहियों के लिए इस किले के करीब पहुंचना भी मुश्किल हो जाता। सिकंदर ने किले के करीब पहुंचकर क़ियाम किया और करीबी जंगलों में बड़े बड़े दरख्त कटवा कर उसके इतने बुलंद मचान बनवाए कि फसीलों तक पहुंचना मुमकिन हो जाए। 14 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद ये मचान तैयार हो गए। मैं अपने खेमे में कमांडरों की बीवी के साथ बातें कर रही थी कि अचानक ज़बरदस्त शोर सुनाई दिया। हम सब लोग भाग भाग कर दरवाजे से बाहर झांकने लगे। सिकंदर ने किले पर हमला करना शुरू कर दिया। हज़ारों सिपाही मचानों पर चढ़कर किले में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। किले के अंदर से हिंदुस्तानी कबाइल उन पर पत्थरों और तीरों की बारिश कर रहे थे। जिद में आने वाले बेशुमार सिपाही बुलंद मचानों से गिरकर हलाक और ज़ख्मी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही एक गिरता दूसरा उसकी जगह पहुंच जाता। मेरी निगाहें सिकंदर के चमकते हुए खुद पर जमी हुई थी और वो जिधर जाता निगाहें उसका ताक़ुब करती। अब कुछ मकदूनी तीर अंदाज फसील पर पहुंचकर अंदाज़े मज़ाहमत करने वालों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अंदर से भी तीरों की बौछार जारी थी और फिर फसील पर दस्त बदस्त जंग शुरू हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से उछल रहा था। अगर सिकंदर को कुछ हो गया तो क्या होगा? सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अचानक इतनी ज़ोर का दर्द उठा कि मैं चीख पड़ी। अरे तुमको क्या हुआ? मेरी साथी औरत ने कहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है, लेकिन अभी तो 7वां महीना है, मैंने दर्द से कराते हुए कहा। ज़ेवस रहम करे, मुमकिन है तुम्हें 7वें महीने में ही विलादत होने वाली हो। ऐसा होता है, घबराओ नहीं। मैं शाही तबीब को पैगाम भिजवाती हूँ कि असनाकिया की विलादत होने वाली है। मेरी साथी औरत बाहर निकल गई। एक तरफ जंग की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, दूसरी तरफ औरतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने चीख कर कहा कि पहले हारूस को बुलाओ, और मुझे सिर्फ एक ही डर था कि कहीं हमल ज़ाया ना हो जाए, लेकिन खुदा को मेरे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना मंजूर थे।
मेरे बर्तन में सिकंदर का जानशीन वजूद में आ गया। हर सिमत खुशी के शादियाने बजने लगे। खुशी से मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। बिल आकर हारोस की पेशगोई पूरी हुई थी। मेरे महबूब ज़ीशान अली, उस वक़्त मैं कुरैती की हैसियत से जिस कर्ब में थी उसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। बड़ी मुश्किलों से उससे निजात मिल सकी थी और मैं ऐसा करने के लिए मजबूर थी, वरना मुझे हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाना होता। बहरहाल शाम होते ही पहले ही जंग का खात्मा हो गया। कुछ देर बाद सिकंदर पर्दा हटाकर तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ और वो अब तक जंगी लिबास में था और ख़ुद गिरदे खून से अटा हुआ था। जाने मन फतह होते ही सबसे पहले खुशखबरी ये सुनी कि तुम माँ बन गई हो। उसने झुककर बड़ी मोहब्बत से मुझे बोसा दिया और उसे शायद मेरी बेताबी का इल्म था जो इतनी जल्दी आ गया। लेकिन सिकंदर, ये सिर्फ 7 माह का है, इतना ज़रा सा के हाथ लगाते हुए डर लगता है, मैंने कहा। बहरहाल उस वक़्त सिकंदर की खुशी काबिल दी थी। फिर वो चला गया। मुझ पर जाने क्यों अफसरदगी तारी थी। हालांकि सिकंदर ने बच्चे की पैदाइश पर बेपनाह मुसर्रत का इजहार किया था और ख़ुद मेरी भी मुराद बर आई थी। दूसरे दिन हर सिमत फ़िज़ा में गोश्त के जलने की बू फैल गई, क्योंकि मरने वालों की लाशें जलाई जा रही थीं। मकदूनी अपने मुर्दों को जलाकर उनकी कब्रें बनाया करते थे। सिकंदर ने फैसला किया कि जब तक शाही तबीब मुझे चलने की हदायत ना दें, शाही खैमा पहाड़ी के दामन में निस्ब रहेगा और लश्कर का बड़ा हिस्सा भी मुकीम रहेगा। लेकिन सिकंदर ने खुद बहुत से कमांडरों के साथ लेकर पेशकदमी जारी रखी। सिकंदर की रवानगी के दूसरे दिन मेरे तमाम मसरतों पर औस पड़ गई। मेरे बच्चे ने अचानक दूध पीना बंद कर दिया। शाही तबीब ने उंगली पर शहद लगाकर उसे चटाना चाहा, लेकिन बच्चे का हलक बंद हो चुका था। 2 दिन शाही अतबा और हारूस बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब तदबीरें नाकाम रहीं। किसी दवा ने काम ना किया और फिर मेरा फूल सा बच्चा दम तोड़ गया। मैं सदमे से पागल सी हो गई। हारूस को देखकर मैं उस पर बरस पड़ी। तुम्हारी पेशगोई झूठी थी, बताओ अब सिकंदर का कौन जानशीन बनेगा? मैं गम से बेताब होकर चिल्लाई। हारूस ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, खुदा पर भरोसा रखो असनाकिया, तुम्हें एक और बेटा अता करेगा। लेकिन तसल्लियाँ किसी माँ की ममता को औलाद के सदमे से निजात नहीं दिला सकती। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। ये लोग मुझे तसल्लियाँ देते रहे और मुझे सब्र दिलाने के लिए दुआएं मांगी गईं, लेकिन 4 दिन तक मैं भूखी प्यासी गम से नढाल पड़ी, सिसकियाँ लेती रही और फिर उसी आलम में मुझे शदीद बुखार हो गया। बेहोशी के आलम में मेरी चीखें बुलंद होती रहीं, यहाँ तक कि बच्चे की तरह मेरा हलक भी बंद हो गया और ग़िज़ा तो क्या, पानी का एक कतरा भी हलक से उतरना नामुमकिन रहा। इलाज की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई, दुआएं भी बेअसर साबित हुईं। जब सबको यकीन हो गया कि मेरा बचना महाल है, तब सिकंदर को मतला करने के लिए एक तेज़ रफ्तार कासद रवाना किया गया। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। ज़रा भी होश आता तो मैं सिकंदर को आवाज़ देती और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तारीकियों में डूबती चली जा रही हूँ। शायद मैं मर रही थी। कुरैती की हैसियत से भी मैं परेशान हो गई। ज़ाहिर है अगर असनाकिया इस आलम में मर गई तो एक बार फिर मुझे मेरे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शायद अभी मेरी बचत कुदरत को मंजूर थी। एक शाम मैं उसी तरह बेसुध पड़ी हुई थी कि एक आवाज़ आई, असनाकिया, असनाकिया। एक मोहब्बत भरी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई और उस आवाज़ में जाने क्या जादू था, जाने क्या रस था, कैसी मिठास थी। मेरा दिल बेसाख्ता बोलने को चाह रहा था। मैं आंखें खोल देना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। वो आवाज़ मुझे मुसलसल बुला रही थी, मुझे पुकार रही थी। मेरा रुमा रुमा लब्बाक कहने को बेताब हो रहा था। मैं ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी, यहाँ तक कि अचानक मेरी आँख खुल गई। मेरा महबूब औलाश मुझ पर झुका हुआ था और उसने मेरे दोनों हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे और उसका हसीन चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें मोहब्बत से चमक रही थी और उनसे मोहब्बत का नूर फूटकर मेरे रगो वपे में सरायत कर रहा था और उसकी मोहब्बत भरी शीरी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। अचानक औलाश का चेहरा धुंधलाने लगा और एक बार फिर मैं तारीकियों में डूबने लगी। औलाश ने बेताब होकर आवाज़ दी, असनाकिया, असनाकिया, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पास बैठा हूँ, असनाकिया। मैंने अपनी तमाम तरकुवत इरादी से काम लेकर आंखें खोल दी। औलाश मेरे पास बैठा हुआ था और उसने जल्दी से एक प्याला मेरे लबों से लगा दिया।
असना किया, ये शरबत पी लो, ये मोहब्बत की शराब है, मेरी मोहब्बत की शराब। उसने सरगोशी में कहा। मैं नहीं पी सकती, मैंने बेबसी के आलम में कहा। औलाश ने अपने बाजू के सहारे मुझे उठाकर प्याला फिर मेरी लबों से लगा दिया। मेरा सर उसके सीने से लगा हुआ था और उसके दिल की धड़कनें मुझे महसूस हो रही थी। इसको पी लो असना किया, मेरी ज़िंदगी, मेरी तमन्ना, तुम पी सकती हो, मेरी खातर, अपने औलाश की खातर इसे पी लो। मैं कसम खाता हूँ कि तुम पी सकती हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम पी सकती हो। उसके अल्फाज में जाने कौन सा जादू था। वो कह रहा था कि तुम पी सकती हो और मुझे यकीन था कि वो सच कह रहा है। मैंने लबक खोल दिए, शराब मेरे हलक से उतरी, रगो वपे में आग सी दौड़ने लगी। शाबाश शाबाश जाने मन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लो इससे खाओ और उससे ताकत आएगी। और मैंने उसके हुक्म की तामील की। उसने आहिस्ता से मुझे फिर लिटा दिया। अब तुम सेहतयाब हो जाओगी, खुदा अजीम है, उसने आहिस्ता से कहा। औलाश, ये सब क्या है? क्या तुम जिंदा हो? मैं भी जिंदा हूँ। क्या हम दुनिया में हैं? उसने सर हिलाया। मैंने देखा कि खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और तब मेरी नज़र सामने खड़े हुए हारूस पर पड़ी। मेरा हलक अब खुल चुका था। औलाश ने मुझे देखते हुए कहा, आराम करो सना किया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। औलाश ने बड़े प्यार से यकीन दिलाया।